حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے بلکہ اس سے بڑھ کر مخلوق کی بے لوث خدمت کرنا، بھوکے کے لیے نوالا، پیاسے کے لیے پانی، بیمار کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ یہی رضائے باری تعالیٰ کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تھرپارکر 17 لاکھ سے زائد کی آبادی اور 19,638 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا پاکستان کا سب سے بڑا ریگستان ہے۔ تھرپارکر دو الفاظ تھر اور پارکر کا مجموعہ ہے۔ تھر کا مطلب ہے صحرا یا ریگستان، جبکہ پارکر کا مطلب ہے دوسری جانب۔ تھرپارکر ریت کے ایک سمندر کی مانند ہے۔ ریگستان کی ہیبت انسان کے دل کو دہلا دیتی ہے۔ تپتی دھوپ میں ہر سایہ غائب ہو جاتا ہے اور پیاس جان لینے والی کڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ رات کے اندھیرے کا سناٹا جیسے زمین کی سانس روک دیتا ہے، گویا ساری دنیا ویران ہو گئی ہو۔ ریگستان اپنی ہیبت سے انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ایک خوفناک اور بے رحم منظر سامنے آتا ہے۔ یہاں ہر لمحہ صبر اور حوصلے کا امتحان ہے۔ یہاں کے باسی زندگی کی سختیوں کے باوجود امید کا دیا جلائے رکھتے ہیں۔ اکثر میلوں پیدل چل کے چند گھونٹ کڑوا پانی لاتے ہیں، جن سے نہ پیاس بجھتی ہے اور نہ بیمار جسم کو سکون ملتا ہے۔ اس صورتحال میں وقف جدید وہ امید کی کرن ہے جو ان تھکے ماندوں کو حوصلہ دیتی ہے اور ان کے غم بانٹتی ہے۔ وقف جدید پورے پاکستان، بالخصوص تھرپارکر جیسے پسماندہ علاقے میں خدمت انسانیت میں مصروف عمل ہے۔ صحرا کے باسیوں کے لیے خدمت، سکون اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ یہ انسانیت کی خدمت کا وہ مرکز ہے جہاں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ مشن ہاؤسز ریگستان کے باسیوں کے لیے سکون اور سہارا ہے۔ یہ خدمت، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں اور انسانیت کی روشنی ہر دل میں بکھیرتے ہیں۔ ہے کارنامۂ فضل عمر یہ وقف جدید دکھا رہی۔ بانی وقف جدید سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے سن 1957 میں اس تحریک کے اعلان کے ساتھ پاکستان، بالخصوص سندھ میں ڈاکٹرز کی کمی کا ذکر بھی فرمایا اور واقفین وقف جدید کو کام کرنے کے طریق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بعض واقفین کو اس علاقے میں جن میں ان کا تقرر کیا جائے گا، جہاں 10 میل تک کوئی حکیم اور طبیب نہ ہو، وہاں عطار کی دکان کھلوا دیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہو سکا تو ہم ان کو کمپاؤنڈری کی تعلیم بھی دلائیں گے۔ چنانچہ 1960 میں یہ تجویز دی گئی کہ احمدی تربیت یافتہ کمپاؤنڈرز میں تحریک کی جائے کہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کریں اور جہاں اپنے خرچ پر نگر پارکر میں جا کر رہائش اختیار کریں، وہاں طبی پریکٹس کے ذریعے گزر اوقات کا سامان کرنے کے ساتھ ساتھ اشاعت حق کا کام بھی کرتے رہیں۔ اس تحریک کے نتیجے میں مکرم محمد سعید صاحب ابن مکرم فیروز الدین صاحب، انسپیکٹر مال تحریک نے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کیا۔ یوں تھرپارکر میں دعوت اللہ اور خدمت خلق کا آغاز ہوا۔ سن 1960 کی دہائی میں وقف جدید نے تھرپارکر میں کام کا آغاز کیا۔ یہ علاقہ مشکل اور مسائل کا شکار علاقہ تھا۔ زندگی کی بنیادی ضروریات، کھانے پینے کی اشیاء، سفری سہولیات کا فقدان تھا۔ پانی اور ذرائع ابلاغ کی عدم دستیابی، رہائش اور زبان کے مسائل، اور سانپ بچھو وغیرہ کا خطرہ تھا۔
लेकिन इन तमाम मसाइल और मुश्किलात के बावजूद सूफियाना जिंदगी इख्तियार करके हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मानने वाले इस बेआबो गयाह सहरा में धूनी रमाए बैठे रहे और बड़ी बशाशत के साथ इन मुश्किलात का मुकाबला किया और अपने मौला से लौ लगाकर खिदमत खल्क के कामों में मसरूफ रहे और आज भी हैं। वक्फ़े जदीद ने काम की सहूलत को बेहतर करने के लिए थरपारकर को 3 हल्का जात में तकसीम किया है। हल्का मिट्टी, हल्का दानो दांदल और हल्का नगर पारकर। और खिदमत खल्क का वो कारवान जो डिस्पेंसरियों से शुरू हुआ था आज अस्पतालों की सूरत इख्तियार कर गया है। रेत के बेआबो गयाह मैदानों में अस्पताल जिंदगी का वो नखलिस्तान है जहां प्यासे मुसाफिर की तरह बीमार इंसानों में उम्मीद जन्म लेती है और जिंदगी को सुकून और सहारा मिलता है। इस इलाके में अस्पताल का ना होना एक सहूलत की कमी नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के फैसले में फर्क बन जाता है। मिट्टी जो कि थरपारकर का जिलाई हेडक्वार्टर है, उसमें से अंसारुल्लाह पाकिस्तान के ताउन से तामीर होने वाला अल मेहदी अस्पताल वक्फ जदीद के तहत काम कर रहा है। यह अस्पताल सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करता बल्कि दुख दर्द में डूबे चेहरों पर मुस्कुराहट भी लौटाता है। सहरा की वीरानी में ये एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरों को चीरकर जिंदगी को सहारा देती है और इंसानियत को बका का पैगाम सुनाती है। जितने भी यहाँ स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी कोऑपरेशन अपनी बहन और अपने भाई जैसी है। कोई जात पात नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, इंसानियत के बुनियाद पे ये काम करें। हम इनके साथ हैं और जो भी ये काम करेगा हम इनके साथ रहेंगे। इस अस्पताल में लेबोरेटरी, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, माइनर सर्जरी, डेंटल लैब के साथ साथ होम्योपैथी और एम्बुलेंस की सहूलियात मौजूद हैं। इस अस्पताल से सालाना हजारों मरीज इस्तेफादा कर रहे हैं। असांजे ॻोठ में अहिड़ी कोई अस्पताल कोन्हे, नंढड़ी या वॾी कोई अस्पताल आहे कोन असां वटि। ऐं असां में जाम मसइला थींदा आहिनि। मायूं घर वेठे ई मरी वेंदियूं, न रसोड़ी जी ख़बर पवंदी आहे, न ॿार जी ख़बर पवंदी आहे, डिलीवरी में मरी वेंदियूं आहिनि। ऐं असीं हिते अल मेहदी अस्पताल ईंदा आहियूं त असांजे सभु मसइलनि में जान छुटी वेंदी आहे। वक्फ जदीद की तरफ से अस्पताल में नादार मरीजान का न सिर्फ मुफ्त इलाज किया जाता है बल्कि उन्हें खाना और एम्बुलेंस वगैरह की सहूलियात भी बिला मुआवजा फराहम की जाती हैं। रेत के सन्नाटे में अस्पताल इंसानियत की वो पनाहगाह है जहां दर्द कम हो जाता है और जिंदगी लौट आती है। उनखां पोइ हिते असीं अची विया। हिते असांजी नॉर्मल डिलीवरी थी वई, बची वई ऐं असांजो पाण जो इलाजु सही थियो। खैर सुख सां डिलीवरी सवले नमूने सां थी वई। अस्पताल के डॉक्टर्स के ताउन से वक्तन फवक्तन नगर पारकर और थर पारकर के दूर दराज देहात में मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाते हैं जिनसे सैकड़ों मरीज मुस्तफीद होते हैं। थर का इलाका इंतहाई पसमानदा इलाका है और यहाँ बहुत गरीब जो हैं वो लोग रहते हैं और सेहत की सहूलियात इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। और जो है हमारी अस्पताल में बड़ी दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं। तकरीबन 200 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ से हमारे पास लोग आते हैं। नगर पारकर से, नौकोट से, नुसरताबाद से, बदीन से, गुलारची से, उमरकोट से। तो काफ़ी बड़ा इलाका है रेगिस्तान का जहाँ से हमारे पास इलाज करने के लिए लोग जो है ना वो। इस अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की रिहाइश के लिए क्वार्टर्स तामीर किए गए हैं। जरा कुछ देर के लिए तसव्वुर करें कि आपकी आंखें धुंधला गई हैं। आप रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के लिए किसी का सहारा ढूंढते हैं। सिर्फ पैसे न होने के बायस आप अपना इलाज नहीं करवा सकते और कोई आपको मुफ्त ये इलाज कर दे तो आपको कैसा महसूस होगा। सन 2006 से अल मेहदी अस्पताल में सिद्दीक बानी आई यूनिट का इजाफा किया गया। इस यूनिट में आंखों का इलाज और ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिद्दीक बानी आई यूनिट उन लोगों के लिए रहमत है जो अंधेरों में डूबे होते हैं। यहाँ से उन्हें न सिर्फ बीनाई मिलती है बल्कि जिंदगी को नए रंगों में देखने का सहारा भी मिलता है। और इसमें
सालाना सैकड़ों मरीज़ के आँखों के ऑपरेशन मुफ्त और या निसफ मुआवजे पर किए जाते हैं, जिससे मरीज़ों को इस इलाके की ये बहुत बड़ी सहूलत मैसर है। इसी तरह सन 2009 में वक्फ जदीद ने लजना इमाल्लाह के ताउन से नगर पार्कर में ताहिर अस्पताल के नाम से एक दीदाज़ेब और खूबसूरत अस्पताल तामीर करवाया। इस अस्पताल में कंप्यूटराइज्ड लैब, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे, होम्योपैथी तरीका इलाज और एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है। इस अस्पताल से सालाना हजारों की तादाद में मरीज इस्तेफादा करते हैं। मैं ताहिर हॉस्पिटल में लास्ट 5 ईयर से खिदमत कर रहा हूँ। मुझे खिदमत का मौका मिल रहा है लास्ट 5 ईयर से ताहिर हॉस्पिटल में। मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर से कि हमें बहुत नीड है डॉक्टर्स की यहाँ पे, तो ऑन एंड ऑफ डॉक्टर्स आएँ, हमारे साथ मिलकर इस खिदमत करें इंसानियत की। गायनेकोलॉजिस्ट की हमें यहाँ पे बहुत अशद ज़रूरत है, जिसकी यहाँ के पेशेंट जो हैं वो अक्सर यहाँ से मिट्टी रेफ़र होते हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर अवे है। कई पेशेंट जो रास्ते में ही अपना एक्सपायर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट हों तो हम इस मज़ीद इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। इस अस्पताल में भी नादार और ज़रूरतमंद मरीजान का मुफ्त इलाज किया जाता है और उसके साथ साथ उनको खाना और एम्बुलेंस की सहूलत भी बिला मुआवजा मुहैया की जाती है। थरपारकर के इस इंतहाई गरीब और दूर दराज इलाके में बिलाशुबा ये बहुत बड़ी खिदमत है। मैं पहले 5 साल रहकर आया हूँ थरपारकर, और अभी मैं हर माह जाता हूँ कैंप में, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं हर माह अपने काम का खर्च करके भी जाऊँ, और मुझे उसमें एक रूहानी और ज़हनी सुकून मिलता है। और मैंने उसके फ़ायदे अपने ज़िंदगी में देखे हैं और मेरी औलाद ने भी देखे हैं, और मेरी औलाद ने इस तरह देखे हैं कि अब मेरी औलाद इतनी इंस्पायर हो गई है कि अब वो खुद जाती है और उनको वो इससे लगाव ही नहीं है कि हमने पैसा कमाना है या क्या करना, उनको ये है कि हमने बस खिदमत करनी है। वक्फ जदीद आंखों के साथ साथ दिलों को भी मुनव्वर कर रही है। थरपारकर का इलाका बुनियादी तालीमी सहूलतों से भी महरूम है, लेकिन रेगिस्तान की बेरहम धूप और प्यासी जमीन के बीच एक स्कूल उम्मीद का वो साया है जो मासूम दिलों को जीने का हौसला देता है। वो चिराग है जो मासूम बच्चों के ख्वाबों को रोशनी देता है। बच्चों के लिए ठंडी हवा का झोंका है जो रेत के तूफानों में भी ख्वाब देखते हैं। यहाँ से उठने वाली इल्म की रोशनी न सिर्फ उनकी किस्मत बदलती है, बल्कि पूरे सहरा को खुशबू और जिंदगी से भर देती है। शुरू से ही मुअल्लिमीन के जरिए अहले इलाका में तालीम का शऊर उजागर किया जाता रहा है। सन 2003 में थरपारकर में बच्चों के लिए मयारी तालीम के हुसूल को मुमकिन बनाने के लिए अल मसरूर पब्लिक स्कूल के नाम से तालीमी इदारे का आगाज फूलपुरा में एक चौराहे से किया गया। इस वक्त थरपारकर में जमात अहमदिया के तहत 21 स्कूल काम कर रहे हैं, जिसमें 32 टीचर्स हैं और 1300 से 1400 तक के लगभग तलबा हैं। ये स्कूल दूर दराज इलाकों में हैं जहाँ पर तालीम की सहूलतें नहीं हैं। वहाँ पे जमात ने इस कौम के बच्चों की को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए स्कूल का सिस्टम शुरू किया और वहीं के मुकामी पढ़े लिखे लड़कों को बतौर टीचर रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मयारी तालीम होने की वजह से इन स्कूल्स के बच्चे नुमायां पोजीशंस हासिल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इक़दाम को यहाँ के मकामी अहबाब बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं और खुश भी होते हैं कि आपने हमारे बच्चों की तालीम के लिए ये सब कुछ किया। नंगर शहर में तालीमी मयार को बेहतर करने के लिए नूर एकेडमी मौजूद है। इसकी नई इमारत ज़ेरे तामीर है जो मासूम दिलों के ख्वाबों को बिखरने से बचाने वाली पनाहगाह है। ये एकेडमी नगर पार्कर में इस जगह 14,500 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल स्कूल की तामीर का प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पहले फ़ेज़ की तामीर के बाद क्लासरूम में बच्चों की तालीम का आगाज़ हो चुका है और इस दूर अफ्ताद इलाके में तालीम से महरूम बच्चों को तालीम जैसी अहम जेवर के साथ आरास्ता किया जा रहा है। रेगिस्तान की खामोशी में ये एकेडमी बच्चों की मुस्कुराहट और इल्म की सदा बनकर गूंज रही है। इंशाल्लाह नूर एकेडमी यहाँ के बच्चों के लिए
تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہترین رستہ ہوگا۔ یہ ادارہ مستحق بچوں کو نہ صرف تعلیم بلکہ مفت کتب، بیگز اور اسٹیشنری بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے خوشی کا سہارا ہے، امید اور روشنی کا مرکز ہے۔ یہ ننھے دلوں کے خواب جگاتا ہے اور ان کے مستقبل کو سنوار کر صحرا کے اندھیروں میں علم کا چراغ جلا دیتا ہے۔ موجودہ زمانے میں کمپیوٹر کی تعلیم کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر کی تعلیم آج کے دور میں اندھیروں میں روشنی کا چراغ ہے جو طلبہ کو نئی منزلوں کی طرف رہنمائی بخشتا ہے۔ اس علاقے میں کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے کوئی بھی ادارہ نہیں تھا، چنانچہ کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے گریس کمپیوٹر کالج کے نام سے وقف جدید نے سن 2006 میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جہاں کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ DIT کورس بھی کروایا جا رہا ہے۔ اس ادارے کو اتنے دور دراز علاقے میں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اس سے پہلے کوئی ایسا ٹیکنیکل ادارہ موجود نہیں تھا۔ جب یہ ادارہ بنا تو بہت سے طلباء نے ٹیکنیکل تعلیم حاصل کی، اور اس ادارے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب تک سینکڑوں طلباء سرٹیفکیٹ حاصل کر کے سرکاری اور غیر سرکاری نوکریاں کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ یہ تعلیم انہیں زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے اور اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے منوانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ہم جو ہے پائتھن پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ اس کا کورس کر رہے ہیں۔ یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں سافٹ ویئر بنانا چاہتا ہوں اور ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لینا چاہتا ہوں۔ افادیت کے پیش نظر اب اس کی نئی عمارت زیر تعمیر ہے۔ وقف جدید کے تحت تھرپارکر میں جاری تعمیراتی منصوبہ جات میں سے ایک یہ اہم منصوبہ IT انسٹیٹیوٹ نگر پارکر ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ کل تقریباً 10,000 مربع فٹ ایریا پر مشتمل ہے، جبکہ اس کی عمارت میں 2 کمپیوٹر لیبز ہیں، اسی طرح لیکچر رومز ہیں 2، اور طلباء کے لیے کینٹین، ٹوائلٹ ایریا، اسی طرح اساتذہ کے لیے اسٹاف روم، پرنسپل آفس اور ایڈمن آفس شامل ہوگا، اور اس پسماندہ علاقے کے نوجوانوں کو IT جیسے اہم شعبے کے ساتھ وابستہ کر کے ان کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ شہروں سے دوری کے باعث دیہاتوں میں رہنے والے طلباء باوجود شوق کے اعلیٰ تعلیم کے حصول سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے وقف جدید نے اس علاقے کے 3 بڑے شہروں مٹھی میں فضل عمر ہاسٹل، دانو داندل میں طاہر ہاسٹل، نگر پارکر میں ناصر ہاسٹل احمدی طلباء کی رہائش کے لیے قائم کیے ہیں، تاکہ طلباء یہاں رہ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ ہاسٹلز ان بچوں کا گھر ہے جو تعلیم کے لیے اپنے گھروں سے دور آتے ہیں۔ یہ جگہ ان کے خوابوں کو سہارا دیتی ہے اور تنہائی کو محبت اور دوستی میں بدل دیتی ہے۔ صحرا کی بے رحم وسعتوں اور تنہائی میں ہاسٹل بچوں کے لیے ایک ایسا آشیانہ ہے جہاں انہیں ماں جیسا سکون اور گھر جیسی پناہ ملتی ہے۔ خاکسار کوہاڑا گاؤں سے جو یہاں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ ہم رہ کے اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ یہاں پر اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کر کے ایک کامیاب انسان بنیں، تاکہ ہم اپنے پیرنٹس کو فائدہ پہنچائے، اپنی جماعت کو فائدہ پہنچائے۔ یہاں مقیم طلباء کو قیام و طعام کی سہولت کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ان ہاسٹلز میں بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ طلباء جماعتی پروگرامز اور اپنے اپنے اسکولوں میں پوزیشنز حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہاسٹل ان ننھے طلباء کے خوابوں کا وہ سہارا ہے جو تعلیم کے لیے اپنے گاؤں اور خاندان سے دور آتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی ہے، اور اس کے بعد 6 سے لے کے 10ویں تک احمدیہ طاہر ہاسٹل نگر پارکر سے حاصل کی ہے، اور وہاں پہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا۔ میں بہت اچھا سیٹ اپ اس لیے بول رہا ہوں کہ کیونکہ سب سے بڑا جو اسٹوڈنٹ کو مسئلہ آتا ہے وہ رہائش کا ہوتا ہے، تو جماعت نے وہاں ہاسٹل دی ہے اور رہائش دی ہے، کھانا پینا، اور یہ بہت ساری فیسلٹی ہے لڑکوں کے لیے،
क्योंकि बाहर जो लड़के रहते हैं उनके पास ये सारी फैसिलिटी नहीं होती, तो वो पढ़ाई इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। यहाँ पे रह के जो तब्दीली आई है जमात के साथ रह के, वो ये है कि एक तो हमें दीनी और दुनियावी मालूमात का पता चला, लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना और कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी, ये सब जमात के साथ ही रह के हमने सीखा है। तपती धूप और रेत के तूफानों के बीच ये जगह उनके लिए उम्मीद, हौसले और रोशनी का चिराग है, जो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो अपनी किस्मत बदल सकते हैं और सहरा की वीरानी को इल्म के नूर से जगमगा सकते हैं। वक्फ जदीद के तहत काम करने वाले मौलमीन अपनी फैमिलीज के साथ रहकर दावत अल्लाह, तरबियत और खिदमत खल्क के कामों को सरअंजाम दे रहे हैं। मौलमीन फैमिली सेंटर्स, सिलाई सेंटर्स का काम भी कर रहे हैं। सिलाई सेंटर गुर्बत और बेबसी में जकड़ी हुई औरतों के लिए उम्मीद का चिराग है। यहाँ सिलाई मशीन की टिक टिक सिर्फ कपड़ों के जोड़ने की आवाज नहीं, बल्कि ख्वाबों और हौसलों के बुनने की सदा है। ये सेंटर औरतों को हुनर, खुद एतमादी और इज्जत बख्शते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने खानदान के लिए सहारा बन सके। मौलमीन की बेगमात भी औरतों और बच्चों की तरबियत में नुमायां काम कर रही हैं। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये सारी जो सेंटर पे फैमिलीज़ हैं वो इसी तरह अपना वक्त निभा रही हैं, काम कर रही हैं। जिस तरह से मैं इधर दूर दराज के इलाकों में खिदमत करने की अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है, इसी तरह बाकी मौलमीन भी, उनकी बेगमात भी यहाँ पे क्लासेस लगाती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। यहाँ पे सहूलियत भी नहीं है, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला हमें खिदमत करने की तौफीक अता कर रहा है। इस इलाके की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए वक्फ जदीद ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम वस्से मकानका के तहत मिट्टी, नगर और दानो दांदल में मिशन हाउसेस और बुनियादी सहूलतों से आरास्ता, कुशादा और दीदा ज़ेब गेस्ट हाउसेस भी कायम किए हैं। ये गेस्ट हाउसेस थके मुसाफिरों के लिए सुकून का साया बन जाते हैं और मोहब्बत और मेहमान नवाजी की मिसाल बन रहे हैं। इस इलाके में सिवाय चंद एक मकामात के अक्सर मकामात पर बिजली मौजूद नहीं है। पहले सूरज गरूब होने के साथ ही सहरा अंधेरे में डूब जाता था, लेकिन अब सूरज की किरणों से हासिल होने वाली बिजली रेगिस्तान के अंधेरों को रोशनी में बदल रही है। ये गरीब घरों में चिराग जलाती है और बच्चों को तालीम के लिए उम्मीद देती है। मकामी अफराद का खिलाफत से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए इन 35 सेंटर्स पर मिशन हाउसेस के अलावा MTA की सहूलत मौजूद है, जिससे वहाँ के लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी ये इलाका साफ पानी, सफरी सहूलतों, बिजली, गैस, ज़राए आमदोरफ्त और ज़राए मवासलात में सालों पीछे है। आज भी वहाँ के रहने वालों को पानी के लिए दूर तालाबों और कुओं का रुख करना पड़ता है। पीने के पानी के लिए मीलों की मुसाफत तय करनी पड़ती है और बारिश के पानी को महफूज बनाने की कोशिश की जाती है और इसी पानी को महफूज रखकर हफ्तों इसी पानी पर गुजर बसर करनी होती है। आज भी सहरा में पानी के हुसूल के लिए सफर किया जाता है और दौराने सफर की मुश्किलात से लड़ा जाता है। इन तमाम तर मुश्किलात और सख्त हालात के बावजूद वाक़फीन वक्फ जदीद का सफर जारी है। इस इलाके में खुदा ताला के फजल से अब तक 10 बाकायदा जमातें कायम हो चुकी हैं। ज़ेरी तंजीमों का क़याम भी अमल में आ चुका है। झोंपड़ियों से शुरू होने वाली बयूतुज़ ज़िक्र अब खुदा के फजल से खूबसूरत और पुख्ता बयूतुज़ ज़िक्र में तब्दील हो रही हैं। इस इलाके में 30 मौलमीन सेंटर्स का क़याम भी हो चुका है। मौलमीन वक्फ जदीद की रिहाइश चौरों में हुआ करती थी, लेकिन अब मरहलावार उन्हें पुख्ता फैमिली क्वार्टर्स में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पानी के लिए कुएं बनाए जा रहे हैं, जहां पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इस इलाके में जो है पानी की मीठे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसके लिए दफ्तर वक्फ जदीद मौलमीन को पानी जो है टैंकर के ज़रिए भिजवाता है और वो जो पानी है जिस जगह ज़ेरे ज़मीन टैंक बना हुआ है वहाँ पे भिजवाया जाता है। और ऐसे मकामात भी हैं जहाँ इसकी भी सहूलत नहीं और पानी लाने के लिए मीलों सफ़र करना पड़ता है।
थर के सहराई इलाके को सरसब्ज करने के लिए वक्फ जदीद के तहत मसरूर ग्रीन थर प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जिसमें सहराई जमीन को काबिल काश्त बनाया गया और अब वहां बेर, अमरूद, फालसे और लीमू का बाग तैयार हो चुका है। वक्फ जदीद इस इलाके में हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर अमल करने की सही करते हुए मसरूफ़ अमल है। याद रखो कि खुदा ताला नेकी को बहुत पसंद करता है और वो चाहता है कि उसकी मखलूक से हमदर्दी की जावे। बस तुम जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हो, याद रखो कि तुम हर शख्स से, खा वो किसी मज़हब का हो, हमदर्दी करो और बिला तमीज़ हर एक से नेकी करो, क्योंकि यही कुरान शरीफ की तालीम है। खुदा के फजल से रेगिस्तान में फूल नई कलियों के चेहरों पे मुस्कान है और दिल इत्मीनान में है, लेकिन अभी मंजिल मकसूद बहुत दूर है और बहुत सी आंखों को रोशनी और बहुत से बच्चों को उनके वालिदैन की जरूरत है। आज भी थरपारकर में बेशुमार आंखें रोशनी के मुंतजिर हैं, बेशुमार बच्चे इल्म की तलाश में हैं, बेशुमार प्यासे पानी के मुंतजिर हैं, बेशुमार अंधेरों में गुम रोशनी के मुंतजिर हैं, बेशुमार बच्चे अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम हैं और बेशुमार माएँ अपने बीमार बच्चों को गोद में लिए मोजज़े की मुंतजिर हैं। ये मोजज़ा आपके ताउन से मुमकिन हो सकता है। वक्फ जदीद और हम मिलकर रेगिस्तान की हैबत को उम्मीद, रोशनी और खुशहाली में बदल सकते हैं।